हेलो फ्रेंड्स। तो आपने पार्ट 4 में देखा वी वर डिस्कसिंग अबाउट सेक्शन 7(1) जिसके तहत डिस्कस किया गया है कि इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेंट विद इन 30 days और वेन एवर द क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी arises the information has to be provided within 48 hours. अब आगे की सेक्शंस हम देखेंगे। Section 8 जिसमें we will discuss under what circumstances we cannot provide the information to the applicant. तो आगे की informations जानने के लिए देखिए Part 5 of RTI Act 2005, the receipt of the request. तो अब जब अगर एप्लीकेंट ने आपको बोला भाई कि हाँ मेरी लाइफ और लिबर्टी का सवाल है, आई विल बी अरेस्टेड, आई विल बी हैंग्ड, कुछ ऐसी अर्जेंसी आ गई है जहाँ पे वो बोल रहा है कि इफ यू डू नॉट प्रोवाइड मी दिस इंफॉर्मेशन, है ना, तो इट मे कॉज, है ना, डेंजर टू माई लाइफ और माई लिबर्टी और आई कैन बी अरेस्टेड। तो ऐसी सिचुएशन अगर है, इन दैट सिचुएशन यू हैव टू प्रोवाइड द कंसर्न इंफॉर्मेशन विद इन 48 hours। इसके लिए टाइम लिमिट है 48 hours, ठीक है। व्हेन इंफॉर्मेशन शॉर्ट फॉर कंसर्न द लाइफ और लिबर्टी ऑफ ए पर्सन, then information has to be provided in the form in which it is short. This is also very important. Suppose he says कि भाई you just provide me information, कोई डिजिटल फॉर्म में दे दो, थ्रू ईमेल दे दो, या फिर लेटर फॉर्म में दे दो, मटेरियल फॉर्म में दे दो, वट एवर, है ना, ही इज आस्किंग सीडी में दे दो, आई डोंट वांट दिस, है ना, दिस पेपर, यू प्रोवाइड मी इंफॉर्मेशन इन सीडी, तो सीडी में रिकॉर्ड करो, दे दो, ठीक है। सो वट एवर जो फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है उस फॉर्म में उसको देना जरूरी है इन्फॉर्मेशन। सीडी में मांग रहा है तो सीडी में दे दो, पेपर में मांग रहा है सर्टिफाइड कॉपी दे दो। नेक्स्ट, provide information to applicant. This includes inspection of works, documents and records. So inspection कब आ जाता है? When information is very bulky. He wanted information of 500 pages, which is not possible for you to provide. It's not feasible ना। 500 पेज कहाँ से निकालूंगा, कितनी कॉपी बनाऊंगा, भाई उसको लिख दो कि this is not feasible to provide, है ना, because the information desired by you is very bulky. You kindly visit to my office on such and such day, है ना, उसमें फिर hourly basis पे charge होता है। First half an hour is free for inspection, thereafter you have to charge, है ना, fee कि you inspect all the records as desired by you और whatever information you required out of that, है ना। वो 500 फाइल मांग रहा है भाई, वो 500 में से हो सकता है उसको 4 ही पेज की जरूरत है, तो that 4 pages I will provide, but I cannot provide you 500 pages. So in such cases you can allow him to inspect the records, ठीक है। For that you have to fix the time and date which should be intimated. बल्कि इन्फॉर्मेशन के लिए बल्कि इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत हमको नहीं है, बहुत ज़्यादा पेजेस हैं which is not feasible to provide him in material form. तो in that case you can ask him to visit your office and inspect the documents, ठीक है। Then taking notes, extract and certified samples of material. अगर वो बोलता है कि ठीक है सर, I don't want copies, I want to inspect the documents and then whatever information desired I will give you notes on the same day, then you provide me that extract of that desired information and samples अगर वो चाहता है कुछ भी आपके पास स्टोर में जो जो सैंपल्स है मेरे को उसके सैंपल्स भी चाहिए, तो then you have to provide those samples also, and ठीक है, certified samples and certified copies of records. Then PIU may fix a day or two of the week for applicants to take samples and for inspection of material. डे फिक्स करना है आपको, एक दिन का अगर पॉसिबल है तो एक दिन, नहीं तो 2 दिन पॉसिबल 2 दिन। Only inspection up to first half an hour is free, thereafter on hourly basis you can charge. चार्जेस हम देखेंगे कितने कितने अभी आगे। Then section 7(5) fee and cost to applicant. The act prescribes the following fee and cost to be charged. Fee accompanying applicants for the request of information. फी कहाँ लगेगी भाई एप्लीकेंट को? फी एप्लीकेशन के साथ लगेगी, एप्लीकेशन के साथ 10 रुपए। फर्दर फी रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन requested. So whatever our information he is asking
दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड इन मटेरियल फॉर्म। उसकी जेरोक्स कॉपी निकालोगे, उसकी फीस को देना पड़ेगा। फी प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल्स फॉर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। सीडी दिया है भाई, तो सीडी की क्या कॉस्ट होगी वो लेना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन शैल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज where a public authority fails to comply with the stipulated time limits for disposal of request. एक तो फी कहाँ फ्री है? Person who belongs to below poverty line, you need not to charge. और आपकी ड्यूटी थी you have to provide the information within 30 days, but you could not provide. 30 दिन से ज़्यादा हो गया, 2 दिन 3 दिन, in that case you cannot charge any fee from him. You cannot charge for the material which you are going to provide him. You have to provide him free of charge, क्योंकि वहाँ अगर वो चला गया कमीशन में ना, तो फिर वो उल्टा पड़ जाएगा, आपको फाइन पड़ेगा पर डे के हिसाब से। सो इन दैट केस अगर 1-2 दिन लेट हो गया है तो फिर आप झंझट से मुक्ति पाओ, दे दो उसको मटेरियल फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है। नो सच फी शैल बी चार्ज फ्रॉम द पर्सन्स हु आर ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन। देन टाइम लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, ये याद रखो, क्वेश्चंस में कम है ना, फ्रॉम फॉर दिस टाइम लिमिट within 30 days from the date of receipt of the request in general cases, within 48 hours of receipt of request in cases where the information sought for concern the life or liberty of a person, and add 5 days where an application is given to the APIU. APIU मतलब आपने दूसरे को फॉरवर्ड करना है, या application has come to APIU and APIU is forwarding, he is sitting somewhere else and then he is providing informations to PI अपना this application to PIU. उस केस में फिर 35 days हो जाते हैं कि application was not addressed to me, I am the PIU, he addressed to APIU. APIU कोई सब ऑफिस में बैठ रहा है, then he is forwarding application to me, तो then 35 days. कौन आ गया भैया? अमिताभ। And if it is to be forwarded to some other office, if information does not pertains to your office, in that case 5 days. Within 5 days you have to redirect the application. अब ये है important rejection of request. कब हम reject कर सकते हैं informations? Where a request has been rejected, the PIO shall communicate to the persons making the request the reason for such rejection. If you are rejecting the information, you have to mention the reason, है ना, under which section you are rejected the information, under which region, है ना, for why you are rejected the information. That reason has to be given to him. The period within which an appeal against such rejection may be preferred. Period लिखना पड़ेगा कि if you है ना want to appeal, go for appeal, he is the appellate authority, so and so is the appellate authority, or you can make an appeal within such and such time, ठीक है। The particulars of the appellate authority, the particulars उसका देना पड़ेगा अथॉरिटी का, क्योंकि मैंने तो रिजेक्ट कर दिया, अंडर सच एंड सच रूल आई कैन नॉट प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन। अब तुमको मांगना है तो appellate authority से मांगो, appellate authority चाहेगा देगा, let him take his decision. And you are rejected the application, why you are rejected, that reason has to be mentioned. 8.1. There shall be no obligation to give any citizen informations on the matter related to the following exempted informations. ये कहाँ हम देखो नहीं देना है हमको, जो informations are exempted, we cannot provide the informations to the applicant. Number 1, national security, prejudicially affect the sovereignty and integrity of the India. देश की सुरक्षा को खतरा है भाई, जो इन्फॉर्मेशन अगर मैं डिस्क्लोज कर दूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बहुत सारी है ना मिनिस्ट्रीज में ऐसी इन्फॉर्मेशन रहती है कि वी कैन नॉट डिक्लेयर डिस्क्लोज टू द सिटीजन, उसका मिसयूज करेगा, हमारे देश की सुरक्षा को खतरा है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन यू नीड नॉट टू प्रोवाइड, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पब्लिश्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ और ट्रिब्यूनल ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ विच में कॉन्स्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको अगर मैंने डिस्क्लोज कर दिया तो कोर्ट का कंटेम्प्ट हो जाएगा। कोर्ट ने ऑलरेडी है ना जजमेंट दिया हुआ है कि यू है ना कैन नॉट डिस्क्लोज सच एंड सच इन्फॉर्मेशन, और आपने अगर उसको प्रोवाइड कर दिया तो दैट विल बिकम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और फिर वो कोर्ट में खींचेगा जो है एप्लीकेंट। तो इन्फॉर्मेशंस है ना विच में कॉज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सच इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी प्रोवाइडेड if any decision is taken by the court on any informations, है ना,
such information should not be disclosed. Then parliamentary privilege, disclosure of which would cause a breach of privilege of parliament or state legislature. पार्लियामेंट्री अगर कोई इंफॉर्मेशन है ना, उसको डिस्क्लोज करने से अगर ब्रीच होता है प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का अगर ब्रीच होता है कि भंग हो जाएगा, भाई इसका नियम भंग कर रहे हो, अगर आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, दिस इज द प्रिविलेज मोशन है ना, पास्ड बाय सम पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली. तो दिस इज एक्चुअली पर्टेन्स टू persons who are working in parliament or legislative assemblies के ऑफिस में. तो for them this pertains कि there are certain है ना informations which cannot be disclosed by them, otherwise it will become breach of that है ना privilege of parliament or legislative assembly. Then trade secrecy, commercial, confidence, trade secrets or intellectual property, the disclosure of which would harm the competitive positions of a third party. बहुत सारे जो प्रोक्योरमेंट में लोग रहते हैं, मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में, हेड ऑफिस में, डीलिंग विद सेवरल कंपनीज एंड दे नो द ट्रेड सीक्रेट्स ऑफ दैट कंपनी, क्योंकि व्हेन दे आर buying in bulk, so several documents are provided by such company, है ना, we can ask from them several documents which contains the trade secret or intellectual property of that है ना firm, तो commercial firms. So such secrets cannot be disclosed. वो बोल रहा है कि आपके इस कंपनी से आपने 10,000 कंप्यूटर खरीदे थे, ये फलाना कंपनी से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोफोर्स तोप खरीदी थी, उसका इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो. नहीं करेंगे भाई, इट है ना, इट्स ट्रेड सीक्रेट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है बोफोर्स कंपनी की, आपको क्यों बताऊं. आपने देखा ना बोफोर्स केस में कितना हंगामा हुआ, बट एनी डॉक्यूमेंट हैज कम टू योर नोटिस, इट वाज नॉट डिस्क्लोज बिकॉज इट कंटेन्स द ट्रेड सीक्रेट्स ऑफ दैट कंपनी. बोफोर्स केस सुना है? हेलो, यस सर. हाँ, कोई डॉक्यूमेंट सामने आया आज तक? खाली राजीव गांधी चोर है, ये है, वो है, बहुत सारे आरोप लगे, बट हैव यू सीन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस कंपनी? पब्लिक में कहीं को रिलीज हुआ? नहीं हुआ, है ना. इस तरह के जो सीक्रेट्स होते हैं, जो बल्क डील्स होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, और या फिर बल्क डील होती है कॉमर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में, where they submit their trade secrets or intellectual property that cannot be disclosed, है ना. तो if somebody ask, अगर पूछेंगे भी तो बता भाई वो बोफर्स का डॉक्यूमेंट, तो आपको कोई देगा नहीं, ठीक है. Then fiduciary relationship, informations available to a person in his fiduciary relationship. fiduciary relationship अगर किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ में है, किसी कंपनीज के साथ में ऐसे रिलेशनशिप है जो है ना विच कैन नॉट बी डिस्क्लोज. गवर्नमेंट के कई सीक्रेट ये होते हैं ना भाई दूसरी गवर्नमेंट के साथ में, कि भाई सीक्रेसी हैज टू बी मेंटेन. कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट साइन होते हैं बिटवीन है ना टू गवर्नमेंट्स, सो यू कैन नॉट डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशंस, है ना. इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, और फिड्यूशरी रिलेशनशिप है उसमें अगर कोई कॉन्फिडेंशियल कुछ इंफॉर्मेशन है, दैट इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड. सेफ्टी ऑफ इंफॉर्मेशन इन लॉ एनफोर्समेंट, disclosure of which would endanger the life of physical safety of any person. ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन आ जाती है, जो आप पूछ रहे थे सर मेरा सर्टिफिकेट मांगेगा तो देना का नहीं देना, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, बट ये दिस इज नॉट गोइंग टू हार्म योर लाइफ ना, आपकी लाइफ और सेफ्टी का नहीं, बट इंफॉर्मेशन इफ पर्टेन्स टू योर प्रॉपर्टी, है ना, कोई पूछना चाह रहा है तो उसमें हो सकता है. ये मेरा पहला केस था विच आई वॉज रिजेक्टेड this information, है ना. I had rejected. One of the applicant approached me when I was PIU in Hyderabad. He wanted his assets details, properties details of a principal. वो हमारे पास तो आते ही एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं ना भाई. एनुअल रिटर्न में आपका मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिस्क्लोजर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप लोग? हेलो, Yes, sir. कर रहे हैं सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दैट इज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है. इफ समबडी इज आस्किंग दिस इंफॉर्मेशन, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने रिजेक्ट कर दिया है कि मतलब आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज, बिकॉज उस जो जिसकी प्रॉपर्टी का डिटेल मांगा था, ही वाज हैविंग प्रॉपर्टी इन करोड्स, एंड देन उसके लिए प्रोविजन ये है कि यू हैव टू आस्क फॉर हिज कंसेंट कि वेदर है ना दिस इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू है ना योर दिस पर्सनल इंफॉर्मेशन शैल बी प्रोवाइडेड और नॉट. देन ही सेड सर यू डोंट प्रोवाइड इट.
उसको मैंने रिफ्यूज कर दिया. When I refused this information, this person approached to commission. तो वहाँ से RTI कमिश्नर का मेरे को समन्स आ गया. You appear before the commission on such and such day and such time. वो हाई कोर्ट के जजेस हैं जो कमीशन में जो बैठते हैं, कमिश्नर्स है ना, RTI कमिश्नर, they are all retired high court or judges. Mr. Sharma ji was there at that time, and he was retired from high court, and then he was made commissioner of RTI. बुलाया तो बोला हाँ भी बताइए, why do you reject this application? तो मैंने कहा सर कि he wanted property details of such and such person, which is the third party information, and this person is having property of crores of rupees. ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मांगने वाला, आई डोंट नो कि ही इज ए क्रिमिनल है, क्या है, कौन है. इफ आई डिस्क्लोज कि भाई ही इज हैविंग करोर्स ऑफ रुपीज, है ना, इतनी घर है, इतने मकान है, इतनी प्रॉपर्टी, इतनी जमीन है, एंड दिस पर्सन कुछ उसको किडनैप कर ले, किसी के बच्चे को उठा ले, एंड देन ही डिमांड्स फॉर मनी फ्रॉम हिम, तो फिर क्या होगा? दिस इज द थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, एंड दैट टू बन गई, दिस पर्टेन्स टू लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ दिस पर्सन की लाइफ का सवाल है, उसके बच्चों की लिबर्टी का सवाल है. I did not disclose under such and such section. So I won that case. उन्होंने बोला ठीक है भाई, action taken by the PIO is in order बोल के उन्होंने उसको reply दे दिया. So that was my first case when I was summoned by the commission. तो मैंने इसको ये इसमें किया था, rejected under section 8(1) का जो है ना G. तो जहाँ रिजेक्ट करना है तो you have to quote that section also कि we have rejected your information under such and section, under such and such sub clause, और रीजन दे दो क्यों नहीं किया. Then investigations, informations which would impede the process of investigations or apprehension or prosecution of offenders. अब investigation चल रहा है, कोई criminal proceedings है, उसकी proceedings की वो कोई informations मांग रहे है ना, so such information you cannot provide because investigation is not yet over. So any informations which would impede the process of investigations or apprehension or prosecution of offenders, so in such cases such information you can reject. Well friends, so we will conclude this video here itself. Information हम कहाँ नहीं दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं, that we were discussing under section 8, and this will continue in part 6 of the video. So आगे की जानकारी जानने के लिए, आगे की sections जानने के लिए देखिए part 6 of Right to Information Act 2005. Thank you.